Hello, Prerna ji, and thank you so much for giving us this time today. Hi. So, Prerna ji, even though I have explained it to you, I will just very quickly give you a brief of what we are going to do. So, the idea is to ask you the 20 most relevant questions that the aspiring people, students, who want to come into this industry, they have a plan of, let's say, becoming a nutritionist or a dietitian. So ऐसे 20 सवाल जिससे वो करियर अपॉर्चुनिटी को बेस्ट पॉसिबल तरीके से एक्सप्लोर कर सकें with somebody who's already been there and who has already done that, all right? So मैंने इसको segments में बांट रखा है प्रेरणा जी, and we will do it segment by segment. I wanted to start with role clarity and context, all right? So in very simple terms, ma'am, एक clinical nutritionist या एक health coach क्या करता है, उसका primary job क्या होता है? See, clinical nutritionist जो होते हैं वो बेसिकली वर्क ऑन द साइंस ऑफ फूड एंड हेल्थ. Okay. ठीक है. दे एक्सेस पेशेंट अ पर्सन's eating habits, lifestyle, medical history, symptoms, various reports, whatever they have, and then make personalized diet plans. Okay. So this is तो what सिर्फ one डाइट has to चार्ट do. देना नहीं, बल्कि Okay. सिर्फ डाइट चार्ट नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग द व्हाट द बॉडीज रिक्वायरमेंट आर सो ये मैम, एक एंड ओवरऑल. क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ कोच, ये जो टर्म्स हैं ये सिनोनिमसली यूज होते हैं कि अलग अलग दो टर्म्स हैं? Those are different, but they basically they work go hand in hand. Hand in hand, all right. How is the role of, let's say, a clinical nutritionist different from, let's say, a general dietitian? कि वो भी सिमिलर होते हैं? See, जो जनरल डाइटिशियंस होती हैं, they work on in a medical nutrition therapy. Okay. ठीक है, which involves managing clinical conditions through structured dietary interventions basically. Okay. That's the main difference. The focus of the role is different. Okay. Okay. And what kind So of patients and clients do you, let's say, nutritionist, what kind of patients and clients do you work with on a regular basis? Uh, we work with wide range of matlab, different set of people, specifically those who are looking to build habits because of their hectic schedules, and a major role when it comes to people like postpartum women, pregnant women, Right. and people dealing with low energy levels, what diabetes, hypertension, poor sleep, lifestyle, every kind of. All right. So I think that pretty much clears the role of what a clinical nutritionist does. Now, मैं चाह रहा था मैम कि हम ना जो कैंडिडेट्स इसे सुन रहे हैं, पेरेंट्स इसे सुन रहे हैं, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट द वर्क रियली इज, क्योंकि एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट सुन के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ सकते हैं रिगार्डिंग व्हाट दिस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स. सो आई वांटेड टू आस्क दैट व्हाट डज अ टिपिकल डे इन योर प्रोफेशन लुक लाइक? जैसे आप इतने साल से कर रहे हो, फ्रॉम मॉर्निंग हाँ टिल हाँ. इवनिंग एट वर्क, हाउ इज अ टिपिकल वर्किंग डे? तो होता क्या है, इट इज अ मिक्स ऑफ थिंग्स है ना. फॉलो अप्स हो गए, प्लानिंग हो गई, क्लाइंट कंसल्टेशंस हो गए. फिर बहुत सारा समझने में लग जाता है कि क्लाइंट का कंडीशंस क्या है, कंसर्न्स क्या है. उनका प्रोग्रेस ट्रैकिंग ऑल्सो टेक्स टाइम, है ना. तो प्रैक्टिकल चेंजेस फिर उनके प्लान्स में बनाकर सेटल करके देना. तो दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द थिंग गोस. ठीक. बट फॉलो अप इज अ बिग पार्ट ऑफ इट, ओके. बिकॉज आपको अगर आपके क्लाइंट्स जो भी है, यू नीड अ गुड फॉलो अप टू राइट. सस्टेन दोस. राइट. तो दैट टेक्स द मेजर पार्ट. All right. Let's say if somebody comes to you with whatever, let's say whether they are coming to you to make plans for their health या किसी diabetes या किसी चीज से related आ रहे हैं, how does the patient assessment happen? क्या ये इसके पैरामीटर्स फिक्स्ड होते हैं कि हर पेशेंट टाइप के पैरामीटर्स अलग होते हैं असेसमेंट के? नहीं, सी, देर आर फ्यू सेट थिंग्स विच आर मैंडेटरी, है ना, बिफोर वी recommend अ प्लान. और तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है, ईटिंग हैबिट्स कैसा है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, एक्टिविटी लेवल्स कितने हैं. एंड इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल, लैब रिपोर्ट्स, तो वी लाइक टू चेक ऑन दोज. ओके. ठीक है. तो ये डिटेल्ड कन्वर्सेशन के बाद ही क्लाइंट्स
के साथ में पूरा चार्ट जो है, प्लान जो है रिकमेंड किया जाता है हर एक क्लाइंट की, क्योंकि नीड अलग होती है. सो प्लान हैज टू बी पर्सनलाइज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इट शुड बी प्रैक्टिकल फॉर देम. अभी मैम ये कैसे डिसाइड करते हैं, आई मीन दिस इज जस्ट ऑन अ पर्सनल नोट, कि ये प्लान पे मैं अभी रिसेंटली मेरे वाइफ के साथ में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया था। तो उन्होंने एक प्लान बताया, वो प्लान देख के हमको लगा कि अगर हम ये प्लान फॉलो करेंगे तो हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे। बट आई मीन वो प्रैक्टिकल का डेफिनेशन। Those are the challenges, right? अब there are this is what we deal with, है ना, कि पेशेंट का लाइफस्टाइल और एक्टिविटी और सारा कुछ इसीलिए कंसर्न रहता है कि वो सारा डिटेल इंटरेक्शन के बाद ही समझ में आता है कि कहाँ वी कैन फिक्स व्हाट मील्स, वेयर वी कैन सी कि क्या पेशेंट को फीजिबल रहेगा, व्हाट ही कैन मैनेज राइट। इन देयर करंट रूटीन. ऑलराइट। इसमें मैं इस काम के अंदर हाउ मच ऑफ योर वर्क इन्वॉल्व्स काउंसलिंग वर्सेस लेट्स से डाइट प्लानिंग? वेरी मच, बिकॉज बिहेवियर चेंज जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है ना. इट हम्म। इज वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न द थिंग्स राइट। बिफोर यू लर्न द न्यू. ऑफ कोर्स। राइट, तो डाइट प्लानिंग तो है ही है, बट अगेन पेशेंट को इतना काउंसलिंग करना पड़ता है. व्हेन यू गो फॉर फॉलो अप कॉल्स, हर पेशेंट को, हर हमको सबको पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पानी ज्यादा पीना है, एक्सरसाइज करनी, ये सबको पता है, वी ऑल नो बेसिक्स. लेकिन स्टिल बिहेवियर चेंज इज रिक्वायर्ड, है ना, तभी आपका लाइफस्टाइल शिफ्ट होगा, एंड दैट्स व्हेन यू गेट रिजल्ट्स. तो ये सारा काउंसलिंग ओवर एंड ओवर, एवरी कॉल, एवरी फॉलो अप, इट रिक्वायर्स ऑलराइट, सो मतलब काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट guiding, पार्ट ऑफ। motivating, yeah, helping clients make sustainable changes. So this is the big part. ऑलराइट। और मैम आपके हिसाब से व्हाट डू पीपल अज्यूम दिस करियर टू बी, और सच्चाई में ये करियर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई 11वीं या 12वीं का स्टूडेंट है, उसके दिमाग में इस करियर का एक पर्टिकुलर पिक्चर होगा, राइट. एंड वेन एवर वी एंटर अ करियर वी रियलाइज कि नहीं यार, जो मैंने सोचा था ये एग्जैक्टली वैसा नहीं है। तो क्या गैप क्या है इसके अंदर? सी, लोगों को लगता है कि न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है सिर्फ डाइट चार्ट देना, ओके। बट रियलिटी इज डिफरेंट. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया कि मेजर पार्ट जो है दैट गोज इनटू काउंसलिंग, फॉलो अप्स, है ना, हेल्पिंग क्लाइंट्स की वो अपना जो हैबिट्स है उसको चेंज करें एंड सस्टेन करें. हम्म। बिल्डिंग हैबिट्स टेक टाइम, है ना. तो वो, एंड उसके बाद फिर वो जरूरी नहीं है कि आप प्लान दे रहे हो तो वो प्लान परफेक्टली फॉलो भी हो, एंड हम्म। दैट्स नॉर्मल. हम्म। बट ठीक है, प्रोग्रेस डाइट चार्ट से नहीं होता है, कंसिस्टेंसी अगर है, माइंडसेट पे डिपेंड करता है ये सब हम्म। चीजें. तो इसीलिए मुझे एक बात हाँ, बताइए मैम, आपके एक्सपीरियंस में कितने परसेंटेज लोग जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ देम आर एक्चुअली एबल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स जिसके लिए वो आपके पास आए होते हैं? क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया कि आपके काम में काउंसलिंग बहुत है, इसका मतलब पर्सन के माइंड को भी किसी ना किसी तरह एग्जैक्टली. कन्विंस करना है, एंड देन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल एक्चुअली गेट द रिजल्ट्स? 60%. अच्छा, तो द रिमेनिंग 40% दे फॉल थ्रू इन मिडवे, नहीं हो पाता है मतलब? मिडवे नहीं होता, मिडवे नहीं होता है, एंड देन बहुत लोग उतना विल पावर स्ट्रांग नहीं होता उनका, है ना. दे हम्म। स्टार्ट विद अ वेरी, ऐसे एकदम कि नहीं जोश अब में। तो करना है, हाँ। जोश में कर तो लिया, एंड देन फिर हाँ। सस्टेनेबल नहीं होता है बहुत लोगों के लिए. चाहे आप जितने मर्जी शॉर्टकट्स दे दो, जितने मर्जी आप चीट कोड्स बता दो कि नहीं यार ऐसे कर लो, अगर इसकी जगह ये कर लोगे तो हो जाएगा आपसे. हम्म। बट वो होता है ना कि दे डिपेंड ऑन मोटिवेशन, बट यू रिक्वायर डिसिप्लिन. तो ऐसे ऐसे में लेट्स से मैं किसी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के पास में गया, मैंने मेरा प्लान शुरू किया है, लेट्स से बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल बट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो डू दिस, लेट्स से 6 महीने के बाद, साल भर के बाद में फिर जागा और मुझे नहीं वापस से मोटिवेशन आया, सो डू दिस पीपल शर्म के मारे डू दे गो बैक टू द ओरिजिनल न्यूट्रिशनिस्ट की किसी और ही के पास चले जाते हैं? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yeah, I understand, and होता यही है. Trust me, they go to a new nutritionist. न्यू, क्योंकि आपको फेस करने में Because उसको एक सेंस नहीं ऑफ नहीं, गिल्ट होगा I ना। know, I totally understand that. होता क्या है ना कि there are people, I have clients who come back to me. हम्म। ठीक है, but there will be out of 10, 3 will go to a new one. ओके, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ गिल्ट होगा कि मैडम क्या बोलेंगे कि मैंने पहले नहीं कर पाया मैं।
वंडरफुल। ये मैं ना उन See, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ I can सवाल मैम। motivate, I can guide you how to be यस यस consistent, यस but I यस। ultimately client को ही follow करना है. I cannot follow in place of you. I गेट इट। मैं आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ Results व्यू are ऑफ अ totally पर्सन। result totally depend on कि आपका mindset कितना है, बिल्कुल क्या ठीक है. है, बिल्कुल ठीक है। मैं ना ये सवाल उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ जो इस को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे, उसको पता होना चाहिए कि ये भी चैलेंजेस हो सकते हैं। Definitely. ऑलराइट, गेटिंग इनटू मैम स्पेशलाइजेशन, आपने एक्सटेंसिवली पेरियाट्रिक केयर में भी काम किया हुआ है, तो हाउ इज दिस डिफरेंट पेरियाट्रिक केयर स्पेसिफिकली फ्रॉम जनरल न्यूट्रिशन एंड डाइट चार्ट्स? अच्छा, तो bariatric is not only about just healthy eating and weight management. ठीक है, it is a complex metabolic condition राइट। and उसमें safety, effectivity, long term चीजें ज्यादा मैटर करती हैं. तो बहुत क्लोजर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है. पर्सनलाइज प्लानिंग तो खैर अदरवाइज भी रहता है, बट कोऑर्डिनेशन इसमें डॉक्टर्स के साथ और बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ में रखना पड़ता है. यहाँ ओके सिर्फ न्यूट्रिशन वाला गाइडेंस नहीं, मतलब एक्चुअली टीम टीम सपोर्ट चाहिए होता है पूरा फॉर द ट्रीटमेंट. ओके। और ये हाँ, बेरियाट्रिक केयर मतलब ओबेसिटी से रिलेटेड जो सर्जरी होती है हम राइट उसकी राइट. बात कर रहे हैं ना? बेरेट्रिक इज ओबेसिटी सर्जरी राइट। इन तो इसमें लेमैन्स तो मैम लैंग्वेज. प्री सर्जरी भी काफी सारा मेरे ख्याल से सेटअप होता Exactly, होगा, रोल exactly. होता So होगा। the work starts pre-surgery only. We prepare patient हम्म। pre-surgery, है ना, and then we start shifting patient's mindset that how he or she will be managing the diet post-surgery also. ओके So ओके। that's how we start preparing them from the beginning, सो प्री सर्जरी हो गया, पोस्ट सर्जरी हो गया, उसके बाद right? फॉलोअप्स And भी then होते हैं। follow up, तो मतलब मैनेजमेंट वाला मतलब वो डाइट मैनेजमेंट का भी प्रोसेस इसके अंदर आ गया पूरा। right? ऑल राइट। सो मैम एक बात बताइए मुझे, व्हाट रोल डज न्यूट्रिशन प्ले इन मैनेजिंग सीरियस हेल्थ कंडीशंस? जैसे ओबेसिटी तो एक हमने डिस्कस कर ही लिया, इसके अलावा और भी सीरियस हेल्थ कंडीशंस, हार्ट के कंडीशंस के होते होंगे, आई डोंट नो, मे बी कैंसर पेशेंट्स होते होंगे, तो इनके अंदर भी Mm-hmm. आई एम श्योर न्यूट्रिशन का एक बड़ा रोल होता होगा। Definitely, definitely. See, in nutrition is what decides food, because food decides कि directly आपकी body पे function पे क्या effect होगा, right? राइट। So right nutrition can help reduce and improve your heart health, improve your body fat, blood pressure, and overall energy levels. So ऑलराइट। that is why it is important, right? And diabetes में proper sugar, मतलब अगर आपको ब्लड ब्लड शुगर लेवल्स अगर कंट्रोल करना है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन का जरूर डेफिनेटली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड दिस लोअर्स रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आल्सो. तो ऐसा. ऑलराइट ऑलराइट। और मैम एक न्यूट्रिशनिस्ट को हाउ क्लोजली आर यू गाइस सपोज टू वर्क विद डॉक्टर्स एंड द मेडिकल टीम्स? We work closely with doctors and other healthcare professionals, especially when it comes to managing diabetes, obesities, heart diseases. BP, शुगर तो सबसे कॉमन है. राइट। ठीक है, एंड देन फॉलोड बाय आपका जितना भी हार्ट प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए तो डाइट्स आर वेरी वेरी, मतलब दैट्स लाइक द मोस्ट कॉमन थिंग्स. ऑलराइट वंडरफुल। तो ये जो ये पर्सनल लेवल पे एक सवाल पूछ रहा हूँ मैम, जब ये डॉक्टर्स के साथ में आप लेट्स से यू आर इन कांटेक्ट विद द डॉक्टर और द मेडिकल टीम फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट, तो फ्रॉम द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू हाउ इम्पोर्टेंट इज योर रोल इन दिस? क्योंकि सी आई मीन गॉड. आर दे टोटली डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन मेडिसिन की नहीं, वो बोलेंगे कि भाई यू शुड गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट हु इज रियली गोइंग टू हेल्प यू एंड गाइड यू, डॉक्टर वो इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं क्या न्यूट्रिशनिस्ट के लिए? Right, of course they do. Specifically, it also depends on what kind of setup you work on, है ना? हम्म। तो that helps. कोऑर्डिनेशन से थोड़ा रिकवरी जो है वो बेटर इम्प्रूव होती है. हम्म। मेडिकल कंडीशंस थोड़ी बेटर मैनेज हो सकती है बहुत हम्म। सारी जगह. जैसे थेरेप्यूटिकली डाइट्स हम मैनेज करते हैं तो उसमें देर आर अ लॉट ऑफ फूड रिस्ट्रिक्शंस. तो हम्म। इफ दोज आर मैनेज इन अ बेटर वे तो रिकवरी उतना बेटर होता है पेशेंट का. तो हेल्थ केयर में बेस्ट रिजल्ट्स आते ही तब है जब एवरीवन वर्क्स टुगेदर फॉर पेशेंट्स वेलबींग. All right, wonderful. Now, ma'am, getting into the skills, personality, and suitability for someone to opt for, a nutritionist as a career.
किस पर्सनालिटी के लोग मैम सूटेड हैं इस करियर के लिए आपके हिसाब से? Genuinely, those interested in health and enjoy helping others improve their lives, that's the best suited, right? You need to be a good communicator. हम्म। Patience बहुत जरूरी है, and हम्म। understanding, of course, because हर एक client will come to you with different challenges and needs. हम्म। ठीक है, adaptability is also important, because no two cases are same राइट। again. And team skills are also important, because that's how you work in a team. And healthcare professionals के साथ में थोड़ा काम करना होता है, तो वो if someone enjoys that, तो वही is the best person. Knowledge कम्युनिकेशन जरूरी है. मैम, कम्युनिकेशन का कितना रोल है इसके अंदर? See, communication is very important, but again, knowledge and empathy is also important. सिर्फ communication तो है, लेकिन when you speak to a patient, you need to show empathy. राइट। Patient should patient should feel that you are also feeling what he or she is राइट। facing. सो विच मीन्स कम्युनिकेशन और काउंसलिंग दोनों ही स्किल्स का इम्पोर्टेंस, along with of Right. course understanding the medical terminology and other things, is important for success in this field, right? Right. Okay. Does one need strong science knowledge to be successful? I mean, they should be from any particular background, PCB or something? Strong science foundation is important, but you need to understand how food affects the body, metabolism, and different health conditions. This helps when you work in a hospital kind of environment. Right. So understanding deficiencies, uh, lab reports, these are additional benefits. So outside that, people can join. That is not, it is not that not other people can switch. There Hmm. are a lot of opportunities now, है ना? Just being interested in health and fitness is not enough, because सिर्फ fitness वाली बात नहीं है ये. It Right. is much of people centered. Right. Right. क्या real life struggles. किसको मैम आपके हिसाब से इस करियर में नहीं आना चाहिए? Yeah, this is just on a personal this thing कि who जिसमें according to जिसमें you? पेशेंस नहीं है. Okay, पेश जिसमें पेशेंस नहीं है. ठीक है. बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉट ओनली अबाउट नॉलेज. ठीक है, जैसे मैंने बोला, अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल आर फीलिंग, empathizing with people, Hmm. communication, Hmm. and understanding their real life struggles. Right. This is important. This is how you connect with them. Okay. Okay. Education and entry pathways पे मैम, what qualifications are required for one to become a clinical nutritionist? Bachelor's degree is the first, तो ये and बैचलर्स then किस में होता है इन इसको कोई न्यूट्रिशन का अलग nutrition से कोई होता है कि nutrition and बीएससी? dietetics है. Nutrition ओके. and dietetics, food and nutrition, सो applied दिस कम्स nutrition. अंडर बीएससी ना, बैचलर्स ऑफ साइंस इन Yes, न्यूट्रिशन एंड yes, yes, डाइटिक्स? yes. ओके. Yes, along with the good internship or clinical trainings, that plays an तो important role, because मतलब कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का बच्चा नहीं कर पाएगा ना इसको, इस कर पर्टिकुलर? पाएगा. There are a lot of bridge courses also. There are a lot of diplomas also which you can pursue and switch line post your. बट Uh, टिपिकली लोग जो पाथवे सेलेक्ट करते होंगे, जो मैं समझ रहा हूँ, वो 11वीं और 12वीं में पीसीबी चूज करते होंगे yes. टिपिकल, और उसके बाद ग्रेजुएशन में बीएससी बीएससी न्यूट्रिशन या डाइटरी जो आपने बताया ऑप्शन, वो लेते होंगे लोग. No, it is not that, since I am from an IT background and then I switched here. अच्छा. So ओके. it is. ओके. So it depends on how much you are interested in your, बट फिर भी knowing. टिपिकली लेट्स से इफ समबडी हैज प्लान्ड इट, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरी डॉटर 10th में, अब उसको इसके अंदर आना है, तो मैं आईटी बैकग्राउंड के लिए जाऊंगा कि मुझे पीसीबी के लिए जाना चाहिए फॉर बेटर साइंस अंडरस्टैंडिंग? PCB definitely. पीसीबी That is an डेफिनेटली. added advantage. एंड देन ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ साइंस इन न्यूट्रिशन एंड Right. दिस थिंग. Nutrition and food, or clinical nutrition, or applied nutrition. ओके, सो अप्लाइड Followed, some people even न्यूट्रिशन. do masters also post that. ओके. So yeah. So this the entire idea of we doing this discussion is कि बच्चे को पहले ही मालूम पड़ जाए कि मतलब अल्टीमेटली क्या है मैम. लेट्स से फॉर आज, जैसे आपने मुझे अभी बताया फ्रॉम आईटी यू शिफ्टेड टू दिस,
All right. But if somebody has planned it well in advance, maybe they can plan their pathway right after Yes, class 10. It would be yes, an added yes, advantage for them, right? of course. The basics will be more clearer. So It would be science is better. definitely an advantage being from a science background, but then others can also opt अदर्स कैन later. ऑल्सो ऑप्ट, वो 12वीं के बाद में ब्रिज कोर्सेज या डिप्लोमा करके आ सकते हैं मतलब। Right. ओके। स्टूडेंट्स मैम जस्ट इस इंडस्ट्री में आने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, वो क्या गलती करते हैं आपके हिसाब से? Probably जितना मैंने समझा है, they think that it is only about weight loss. राइट। ठीक है, न्यूट्रिशन के नाम से सिर्फ वेट लॉस ही समझ में आता है. राइट। That's the biggest mistake, most common mistake, that underestimating कि how much science and continuous learning this field requires actually. रिक्वायर्स। ठीक है, तो सो ये कंटिन्यूअस एक. लर्निंग जैसे आपने बोला, तो कंटिन्यूअस लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डोमेन, वन हैज टू कीप अपडेटिंग। राइट, राइट, राइट. यू सी साइंस में कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है. सो हम्म। यू नीड टू लर्न ऑल्सो एज यू स्टे इन दिस फील्ड. It is a एब्सोल्युटली। it is a process of continuous learning. ऑलराइट। And इसके मैम। also some students choose courses without checking राइट। their accreditation or recognition. हम्म। इसीलिए So एक बार that is आदमी अगर प्रॉपर वो बीएससी के चैनल के थ्रू आए, थ्रू अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी, तो प्रॉब्ली उसके चांसेस बेटर और स्ट्रांग हो जाते होंगे। right, right. Also होता क्या है, बहुत सारे लोग ना practical experience नहीं लेते हैं. They ignore that part. द इंटर्नशिप्स एंड द Right, असाइनमेंट्स but रहते हैं। real learning happens when you actually work with people. एब्सोल्युटली ट्रू। एब्सोल्युटली ट्रू। अब प्रेरणा मैम, मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द डिमांड फॉर दिस प्रोफेशन टुडे इन इंडिया, हाउ इज इट प्लेस्ड? See, demand in India is actually growing a lot right now, okay, हम्म। because people are becoming more health conscious now. हम्म। And lifestyle issues like diabetes, obesity, thyroid disorders, हम्म। and blood pressures, these are राइट। increasing. बिल्कुल। ठीक है. सब जब से ये स्पेसिफिकली आए से पोस्ट कोविड, पोस्ट कोविड। जब से सब कुछ एवरीथिंग इज ऑन आवर टिप्स, वी हैव एवरी डिलीवरी, ऑल थिंग्स एट आवर डोर स्टेप. हम्म। द लाइफस्टाइल हैज शिफ्टेड अगेन. यस। ऑप्शंस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं. तो हम्म। दीज हेल्थ कंडीशंस आर गेटिंग सीरियस नाउ. हम्म। So more people are now understand that nutrition is important. ओके, सो दैट मीन्स ये दिस करियर, दिस डोमेन इज ऑन द राइज, ये बात तो मैं समझ Right, में right, आता है right. मुझे। So if students are considering this field, this is actually a great time to enter it. वंडरफुल। और मैम, हाउ स्टेबल और फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग दिस करियर इज? This can be very stable and rewarding, like any other profession. हम्म। But your growth depends on how much you invest in learning and building experience. राइट। In the beginning, it may take time to build, but then once you establish yourself, with the, you can collaborate with growing number of hospitals, clinics, and you can even some can even start their own clinics also. और मतलब people can either get into a job after little bit of experience, they Yes, can yes, start their own practice. right. तो मुझे एक चीज समझ में आया मैम, मतलब if somebody gets into this field, right approach, right certifications, right qualification, right internships, communication और counseling skills के ऊपर if they have worked on, if they have the right kind of experience with the right kind of people, एक कैंडिडेट अपना सक्सेसफुल करियर इस फील्ड में बना सकता है आज के डेट में, Definitely, है ना? क्योंकि मैं ये सवाल definitely. इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ मैम, क्योंकि बहुत सारा रश एक ही डायरेक्शन में जाता है, और उस डायरेक्शन के अंदर जरूरी नहीं कि सबको सक्सेसफुल ही हो जाते हैं ना, आप तो समझते ही होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। And the entire Right. idea of this podcast is to help a person. Let's say if a class 10, class 11 student or a parent is watching this, उसका आउटकम मेरे ख्याल से इस हमारे डिस्कशन का ये होगा कि अगर मैं अपने डॉटर को या मैं अपने सन को इस पर्टिकुलर फील्ड में डाल दूं, तो दे विल बी एबल टू सेटल इनटू अ डिसेंट करियर, और पाथ Definitely. प्रॉपर होगा। अच्छा, एक चीज और थी प्रेरणा जी, इस करियर में औरतें ज्यादा आती हैं क्या? मोर विमेन देन मेन? I guess because I have hardly seen any a very less number of males, but there are now क्यों मैम, ऐसा people. ऐसा क्यों होगा?
आपके हिसाब से, क्यों, वाई मोर वुमेन देन मेन? हालांकि मेरा एक व्यू है इसमें, लेकिन एक बार मैं आपसे समझूं। लड़कियां थोड़ी, मुझे लगता है कि खुद की हेल्थ को लेके भी थोड़ी कॉन्शियस रहती है, तो शायद हम्म। दिस इज हाउ दे हैव शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स दिस फील्ड। और प्लस मुझे ये भी लगता है कि जैसे इंडियन माइंडसेट के अंदर, जैसे इट, फॉर एग्जांपल, मेन स्ट्रीम प्रोफेशन हो गया डॉक्टर बनना, एमबीबीएस। दिस मे हम्म। नॉट बी अ मेन स्ट्रीम प्रोफेशन, ठीक है? तो मे बी बहुत सारे पेरेंट जिनकी डॉटर्स होंगी, वो सोचते होंगे कि भाई इफ आई कैन सेंड माय डॉटर इनटू दिस, इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, आई डोंट नो, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। आई वाज स्पीकिंग टू समबडी अभी रिसेंटली, उसका बेटे को उसने बोला कि मैंने इंजीनियरिंग में डाल दिया है। मेरा डॉटर अभी हम्म। क्लास 9 या क्लास 10 में है। तो बोला इनके इनके साथ क्या प्लान है? तो उन्होंने बोला, कंसिडरिंग दैट आई एम अ करियर काउंसलर एंड आई कीप डूइंग करियर काउंसलिंग, तो उसने कि अमरीश, आई वांट टू पुट हर इन सम ऑल्टरनेट फील्ड ऑफ साइंस, तो मे बी न्यूट्रिशन, एंड द फर्स्ट थिंग दैट ही सेड वाज न्यूट्रिशन एंड ऑल्टरनेट फील्ड ऑफ साइंस, उसने बोला। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, व्हाई नॉट, व्हाई इज शी नॉट ट्राइंग फॉर नीट एंड थिंग्स लाइक दैट? तो उनका जवाब नहीं था उसके लिए कि नहीं, मुझे लगता है कि कल को शी विल गेट मैरिड एंड मे बी डॉक्टर बनने पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, दिस कैन बी, वन विल बी एबल टू मैनेज दिस करियर अलॉन्ग विद फैमिली लाइफ ऑल्सो। ये पेरेंट्स का माइंडसेट है, क्योंकि आई कीप मीटिंग पीपल ऑल टाइम, और लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव दिस माइंडसेट अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम। आप क्या सोचते हैं, इज इट ट्रू टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट? राइट, बिकॉज सी इनिशियली होता क्या है कि वंस यू गेट दैट अंडरस्टैंड, ठीक है, थोड़ा ग्रोथ स्लो रहता है, आई हम्म। आई विल से, हम्म। बट देन वंस यू एस्टैब्लिश ना, तो यू विल बी नोन बाय ऑल, it is अंडरस्टूड। known, and you get a lot of exposure. You need, you get to work with different kind of people. You get to understand what all people's deal in real life, हम्म। what struggles people's, you know, पीपल फेस। face. ठीक है। मैम, व्हाट इज दैट वन मेजर मिसकंसेप्शन पीपल हैव अबाउट न्यूट्रिशनिस्ट टुडे, आपके हिसाब से? पेरेंट्स, uh, बच्चे, कुछ भी, मेजर, एक मेजर मिसकंसेप्शन आपके हिसाब से। कि एक ही डाइट चार्ट है जो सबके लिए होता है। ओके, फाइनली मैम, बिफोर आई वाइंड दिस अप, दे कॉपी किसी का भी डाइट चार्ट मिलना उसका लेके चाहिए। बस मुझे भी दे दिया और Easy हमारा to, दोनों का सेम हो just गया। that, just like, आप Instagram follow, there are a lot of influencers that everyone is ready to copy without राइट। understanding that that person's lifestyle and yours are different. और बॉडी टाइप्स अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, Exactly, your activity levels and that person's level are different. मे बी Your डिफरेंट। day-to-day life is different. ओके, एक स्टूडेंट मान के चलिए मैम, क्लास 11 क्लास 12 स्टूडेंट ये देख रहा है आप, और ही द पर्सन इज नॉट श्योर वेदर दे वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड और नॉट, आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो क्या करे अगले 6 महीने या 12 महीने, टू जस्ट गेट सर्टन कि ठीक है मुझे इस करियर में आना है? व्हाट कैन अ स्टूडेंट डू? सी अगर कुछ ऐसा है तो दे कैन प्रोबेबली, अगर साइंस बैकग्राउंड से है हम्म। तो कुछ ऐसा नहीं है, दे कैन स्विच लेटर ऑन, जैसे मैंने बोला है हम्म। ना। किसी और बैकग्राउंड से है तब भी दे कैन स्विच, 12th के बाद में दे कैन डू सर्टिफिकेशन एंड देन फॉलोड बाय अ हम्म। डिप्लोमा एंड हम्म। लाइक दैट। और अगर साइंस बैकग्राउंड से है तब तो दे हैव टाइम टू रीथिंक ओवर थिंग्स। अगर और एंड पीसीएम इफ की है तब इफ दे, दे कैन स्विच। एंड इफ मान के चलिए साइंस साइड से है बच्चा, बट दे आर नॉट श्योर कि आना है, तो हम क्या कुछ उनको ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है तुम ये करो अपना इंटरेस्ट गेज करने के लिए? See, totally, comes as you see and be in a setup, है ना। ओके। तब अगर आपको थोड़ा भी एक्सपोजर मिलेगा तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, दिस इज फॉर मी और नॉट। राइट। लेकिन वो एक्सपोजर तो बच्चे को तो मिलने वाला नहीं है क्लास 11 नहीं, क्लास 12 में। there are a lot, they can do a lot of, they can do research, they can start learning. अभी तो बहुत कुछ है जो we can learn on our own, है ना, regarding nutrition and everything। सब कुछ हम्म। जो जो documentations available है, they can go through it। अगर ओके। किसी का इंटरेस्ट डेवलप होता है in science and knowledge हम्म। about science, तो then they can definitely switch to this। All right, all right. So, ma'am, with that, I've been able to cover all the questions that I had. But before I let you go, I have a quick rapid fire for you. Five, six simple questions and a quick answer from your side. All right. Sure. So, strong science background is mandatory, myth or fact? It's a myth, like I said.
Yes, other streams can also switch. you mentioned it. This career is more about counseling than diet planning. Agree or disagree? Agree, because that takes the major part. Okay. Can freshers start independently, or is hospital experience essential for them? See, they can start, but I guess we cannot ignore the Hospital experience. importance of practical experience. Like I said, mentioned that Understood. trainings and all those things plays an important role when Okay. you get to see people there. Yes. Is this a stable long-term career in India? Yes or no? Definitely. Okay. Wonderful. Do clients follow advice easily, or is behavior change the real challenge for you? That is the large part of it, because you Okay. that's what take the major role, because you need to counsel them on every follow-ups, every time you speak to them, you need to motivate them. Okay. Finally, one skill every aspiring nutritionist must have. The ability to make science simplify the science, I guess, है ना? Okay. Okay. The skill to make nutrition more adaptable. Okay. Wonderful. Thank you so much.